آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. علاقہ مراٹھواڑہ میں قائم ہوگا انڈسٹریل ہب. بہت جلد ہمارا ملک بن جائے گا دنیا کی تیسری معاشی طاقت، کہا مرکزی وزیر صنعت پیوش گوئل نے. نہرو بھون میں تعمیر کیے جا رہے ماڈرن مارکیٹ کی دکانیں حاصل کرنے میں شہریان کو نہیں دلچسپی. اپنا مقصد پانے BOT پر پروجیکٹ چلانے کی تجویز انتظامیہ کے زیر غور. لاکھوں روپے خرچ کر کے بوٹینیکل گارڈن کو میونسپل کارپوریشن نے کیا تھا ڈیولپ، مگر شعبہ باغات کی لاپرواہیوں کے سبب گارڈن پھر سے ہونے لگا ہے کھنڈر میں تبدیل. متعلقہ شعبے کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان. اور مختلف مطالبات پر نرسز فیڈریشن آف مہاراشٹر اور فیڈریشن آف انڈیا کی پکار پر گھاٹی اسپتال اور سول اسپتال کی نرسز نے کی ہڑتال. حکومت کے خلاف جم کر لگائے نعرے. خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر صنعت پیوش گوئل گزشتہ روز مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ بجٹ سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے اورنگ آباد آئے ہوئے تھے. اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور کہا کہ بہت جلد علاقہ مراٹھواڑہ انڈسٹریل ہب بن جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں کے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا. انہوں نے مرکزی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مثبت پالیسیز کے سبب ہمارا ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور معاشی اعتبار سے تیسری بڑی طاقت بن کر ابھرنے لگا ہے. انہوں نے کہا کہ شیندرا اور بڑکن میں DMIC کے سبب نئی انڈسٹریز یہاں شروع ہونے جا رہی ہیں، جس سے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. پیوش گوئل کے مطابق ہمارا شہر ریاست مہاراشٹر کی سیاحتی راجدھانی ہے اور یہاں موجود غارہائے اجنتا و ایلورا کے سبب اس تاریخی شہر کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے. اونٹھا ناگناتھ اور ناندیڑ گرودوارے کے سبب علاقہ مراٹھواڑہ میں ترقی کا گراف تیزی سے اونچا ہونے لگا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 30 شہروں میں صنعتی ترقی کا منصوبہ بنایا ہے، جس کی وجہ بڑے پیمانے پر دنیا بھر کی معروف کمپنیاں یہاں اپنا کاروبار کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہیں. یہاں سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اس پریس کانفرنس میں ریاستی وزیر اتل ساوے، راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ اور دیگر شریک تھے. پردھان منتری مودی جی نے 20 ایسے شہروں کے مادھیم سے تیار کرنے کا نرنے لیا ہے اور اس میں سے پہلے 4 شہروں میں سے ایک تھا. سفل پریوگ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 60,000 کروڑ جو نویش اس شیتر میں آیا ہے، آنے والا ہے. آگے چل کے ہم اس کا وستار کرنے والے ہیں اور بڑے روپ میں یہاں پہ نوکریوں کا سادھن بنے گا. اندازاً 2 لاکھ یووا یوتیوں کو یہاں پر اس شیتر کو روزگار ملے گا. اور کئی سارے چھوٹے بڑے وشیوں پہ کل ہماری چرچا ہوئی، جس پہ ہم نے نرنے لے کے اور کیسے تیزی سے آگے بڑھے یہاں کے شیتر کا کام، اس کی چرچا کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پردھان منتری مودی جی کا بار بار آگرہ رہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو پریاپت اوسر ملے، ہر ایک کا کوشل وکاس ہو، ہر ایک کو اچھی شکشا ملے، سٹارٹ اپس میں ہمارے جو یووا یوتی جڑے ہیں ان کو اور پروتساہن دینے کا کام کریں، انوسندھان کے اوپر بل دیں. یہ سبھی وشے کل بھی چرچا میں آئے. ہم نے 20,000 اسکوائر فٹ کا اور ایک کی جو بلڈنگ ہے آفس بلڈنگ، اس میں 20,000 اسکوائر فٹ کا ایک کوشل وکاس کیندر، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا کل نرنے لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ لگ بھگ 10,000 اسکوائر فٹ کا سٹارٹ اپ انکیوبیشن ہب بنانے کا بھی نرنے کل لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار سے الگ الگ وشوں کے اوپر جو کل چرچا ہوئی، آگے چل کے وہاں پہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں، ورکرز کے لیے ڈورمیٹری ہاؤسنگ بنے، وہاں کا کمرشل انفراسٹرکچر، ایک اسپتال بن رہا ہے وہاں پہ، ایک یونیورسٹی آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سکول ہو، کلب ہاؤس ہو،
रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो, इन सब चीजों पे और ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को महाराष्ट्र की और देश की शान बनाने के लिए संकल्पित है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इस बजट ने मिडिल क्लास को राहत दी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सीधा मिडिल क्लास के हाथ में दिया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने 1500 रुपए प्रति माह हमारी बहनों को देने का काम शुरू किया, जिस प्रकार से निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत सुविधाओं पे 11,20,000 करोड़ रुपए इस वर्ष बजट में घोषित किया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो, अनुसंधान NRF हो, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सहयोग दे सके, नया स्टार्टअप फंड हो, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 10,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड। रेलवे स्टेशन इलाके में बार बार फूटने वाली 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन की दुरुस्ती का काम जंगी पैमाने पर जारी है, मगर इस काम के सबब ख़दीम शहर के वाटर सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस से शहर को पानी फराहम करने वाली 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन रेलवे स्टेशन इलाके में बार बार फूटती रहती है, जिससे लाखों लीटर पानी सड़क पर बहकर यूं ही ज़ाया होता रहा है। इस पाइपलाइन से जुबली पार्क टाकी को पानी फराहम किया जाता है और इस टाकी से कदीम शहर के बेगमपुरा, पहाड़ सिंहपुरा, यूनिवर्सिटी, भाउसिंहपुरा और दीगर इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ से हफ्ते में 3 बार पानी सप्लाई किया जाता है, लिहाजा जब सप्लाई नहीं होती है ऐसे वक्त में इस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से कदीम शहर के वाटर सप्लाई पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी दफ्तर में आचार्य बालकृष्ण जाम्भेकर की जयंती जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुनक्किद तकरीब में कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिसर संजय कोलते के हाथों बाढ़ शास्त्री जाम्भेकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि इस मौके पर कॉरपोरेशन के स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालैया, इंफॉर्मेशन और राब्ता आम्मा शोबे के रविंद्र खरात, अतुल बनकर, संतोष कोठारे, करण साड़वे और इंजामुल हक व दीगर अफसरान मुलाजिमीन शरीक थे। इसी तरह स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर भी एक तकरीब मुनक्किद की गई और आचार्य बाल शास्त्री जाम्भेकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया गया। स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जगदीश मिनियार के हाथों आचार्य की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर चीफ अकाउंट ऑफिसर उत्तम चौहान, HR मैनेजर विष्णु लोखंडे, दादाराव लाहौटी और दीगर अफसरान मुलाजिमीन शरीक थे। टीवी सेंटर शॉपिंग मॉल की तर्ज पर नेहरू भवन में मॉडर्न मार्केट बनाने का मंसूबा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने बनाया है, लेकिन यहाँ तामीर शुदा दुकानें हासिल करने में आवाम की अदम दिलचस्पी के सबब ये प्रोजेक्ट BOT पर दे दिए जाने का इम्कान है। नाजरीन, 70 की दहाई में बुड्डी लैन इलाके में तामीर शुदा नेहरू भवन की इमारत निहायत बोसीदा हो जाने के सबब म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस इमारत को मुनहदिम करके वहां मॉडर्न शॉपिंग मॉल बनाने का मंसूबा बनाया, जिसे टीवी सेंटर मार्केट की तर्ज पर अवामी फंड से तामीर का प्रोग्राम बनाया गया था और इस मॉडर्न मार्केट का तामीरी काम दिल्ली की एक नामवर कंपनी को दिया गया। इस जदीद मार्केट का तामीरी काम 80 से 90% मुकम्मल किया जा चुका है। यहाँ की दुकानें 30 साल की लीज पर देने की से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने तकरीबन 5 मरतबा टेंडर कॉल किए, मगर ये दुकानें हासिल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, जिसके सबब ग्राउंड फ्लोर की 90 दुकानों में से सिर्फ 7 दुकानों के लिए इंतजामिया को दरखास्तें मौसूल हुई, जिससे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 करोड़ 42 लाख रुपयों की आमदनी हुई है, जबकि अब तक इस प्रोजेक्ट पर 21 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक मजीद 4 करोड़ रुपये खर्च आने का इम्कान है। लिहाजा यहाँ की दुकानें लीज पर देने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया इस प्रोजेक्ट को BOT पर देने के मुतालिक गौर कर रहा है और आइंदा 4 माह में इसके लिए टेंडर मंगवाए जाने का इम्कान है। ज़िला जालना के कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल इलेक्ट्रिक बाइक पर निकल पड़े और यहाँ की सड़कों, ट्रैफिक और दीगर उमूर का जायज़ा लिया।
जिला कलेक्टर जालना श्री कृष्ण पांचाल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर और समस्त महाजन ट्रस्ट के ओहदेदारान इलेक्ट्रिक स्कूटियों पर सवार होकर एक काफिले की शक्ल में शहर की सड़कों पर निकल पड़े और शहर के मुख्तलिफ इलाकों और वहां की सड़कों का अमली तौर पर मुशाहिदा किया। इस काफिले ने शहर के शिवाजी महाराज मुजस्समे के इलाके से नमूदार होकर सराफा बाजार, फुले मार्केट, पानी दरवाजा समेत शहर की कुंडलिका और सीना नदी के इलाकों का जायजा लिया। जालना म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ज़ेरे तामीर फाजिल पानी ड्रेन वाटर प्रोसेसिंग प्लांट को विजिट करके उन्होंने वहां के कामों का जायजा भी लिया और दर्जेदार काम किए जाने की हिदायत दी। इस मौके पर समस्त महाजन ट्रस्ट की जानिब से नदी की गहराई और वसअत को बढ़ाने के जारी काम का भी मायना किया गया। इसी तरह महात्मा फुले तिजारती कॉम्प्लेक्स के काम के लिए यहाँ पार्किंग और यहाँ के अतिक्रमण, हाथ गाड़ियों के हुजूम और मज़कूरा इलाके में फैली गंदगी का भी इस काफिले ने मुशाहिदा किया और मुताल्लिका सफा इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर व एडिशनल कमिश्नर को फुले मार्केट का इलाका साफ सुथरा करने और साफ सुथरा रखने की हिदायत भी जिला कलेक्टर पांचाल ने दी है। काल 2-3 आपल्याकडे ज्या सामाजिक संस्था आहेत त्यांची नियोजन होतं, त्यांच्यासोबत बाईकवर पाहणी केली। महापालिका आयुक्त, अद्विक फाउंडेशन आहे, ते रोटरी आहे, त्यानंतर समस्त महाजन, तर यांची जी कामं चालू आहेत शहरामध्ये त्यांची पाहणी आणि त्याच पद्धतीने स्वच्छतेची पाहणी, तर ई बाईकवर पाहणी केली होती काल। आणि शहरातील जे थोडे कंजेस्टेड एरिया आहेत तिथं ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम आहे, त्याच पद्धतीने फेरीवाले असतील, त्याच्यामुळे ट्रॅफिकचे जे इश्यू होतात, रस्ते जिथं रस्त्यावरती अतिक्रमण आहे, शहरामध्ये पार्किंगची व्यवस्था, नाल्या काही ठिकाणी ब्लॉक होतात, तर तिथली पाहणी, अशा संदर्भाने एकंदरीत शहरामध्ये टू व्हीलरवरती बऱ्यापैकी शहराचा भाग कव्हर केला। आणि त्याच पद्धतीने सीना कुंडलिका नदी इथलं जे काम सुरू आहे समस्त महाजनकडून, तर त्याच्यामध्येही वाढ ते करणार आहेत, तर त्याची पाहणी केली। नदी पात्रावरती झालेली अतिक्रमण, तर याबाबतसुद्धा पाहणी केली आणि त्याच्यामध्ये जे ब्लू लाईन, रेड लाईन आहे जलसंपदा विभागाकडे आहे आणि भूमी अभिलेख यांच्या सहाय्याने महापालिकेला त्या लाईन आखून देऊन तितकं नदीपात्र मोकळं करणं, अशा पद्धतीनं देखील काल चर्चा झाली आणि तशा सूचना दिल्या आहेत। स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये जेवढे व्हेकल आहेत, आता व्हेकलची संख्या देखील वाढलेली आहे, तर सर्वच्या सर्व व्हेकल फिरत आहेत का, GPS व्यवस्थित चेक केलं जातं का। फुलमरी हल्के की नौमुंतखबा रुकन असम्बली अनुराधा चौहान का बाबरा सर्कल में इस्तकबालिया जुलूस निकालकर उन्हें शकर में तोला गया। ऐर है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में फुलमरी हल्के से भाजपा की उम्मीदवार अनुराधा चौहान भारी अक्सरियती वोटों से फातेह करार पाई थी और इस तरह उन्होंने भाजपा की इस रिवायती नशिस्त को बरकरार रखा था। हल्का असेंबली के बाबरा सर्कल में अनुराधा चौहान का अवामी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सर्कल के साबिक मेंबर जितेंद्र जायसवाल, भाजपा तालुका सदर सांडू वाघ, शिवाजीराव पाथरीकर, ऐश्वर्या गाड़ेकर, कौशल्य जंगले, हौसाबाई काटकर, सरपंच यमुनाबाई वाघ और दीगर कसीर तादाद कारकुनान, मर्द ख़वातीन और देही साकिनान मौजूद थे। अनुराधा चौहान ने इस मौके पर मुख्तलिफ कामों से मुतालिक जानकारी हासिल की और सभी काम टप्पे टप्पे से मुकम्मल करवाने का तयक़ुन भी उन्होंने दिया। इस मौके पर जुलूस निकालकर अनुराधा को शकर में तोला गया। मतदारसंघामध्ये तर फार विक्रम, कारण आपलं लोकसभेला आपण 29,000 मायनस होतो आणि आता 33,000ची लीड, म्हणजे आपलं मतदान 62,000 आपण वाढवलं। याच्यामध्ये सगळ्यात म्हणजे माझे लाडके भाऊ, पहिल्यांदा भावाचं नाव घेते, नाही तर भावाला लगेच राग येतो। आमचे सर्व लाडके भाऊ तर खंबीरपणाने पाठीशी होतेच, पण या वेळेस त्यांच्यापेक्षा 2 पावलं पुढे आमच्या लाडक्या बहिणी होत्या। हे मी नाही म्हणत आहे, हे आपल्या मतदानाची आकडेवारी सांगते। महिलांचा मतदानाचा टक्का या वेळेस जास्त आहे, 2%। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने लाखों रुपये खर्च करके शहरियान की सैर व तफरीह के लिए बोटेनिकल गार्डन को मज़ीद डेवलप किया था, मगर शोबे बागात की लापरवाहियों के सबब ये गार्डन फिर से खंडर में तब्दील होता जा रहा है, जिससे
मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, शहरियान को सिद्धार्थ गार्डन जैसी मजीद तफरीगाहें शहर में मुहैया करवाने की गरज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर सिडको N8 इलाके में मौजूद बोटनिकल गार्डन पर एक बड़ी रकम खर्च करके उसे डेवलप करवाया गया है। वहां बच्चों की दिलचस्पी के लिए मिनी ट्रेन शुरू करवाई, इसी तरह वहां बोटिंग का भी इंतजाम करवाया। साथ ही बच्चों के लिए वहां झूले और हम अक़साम के नए खिलौने भी लगवाए गए, जिसके बाद यहाँ सैलानियों का हुजूम बढ़ गया है, जिससे म्यूनसिपल इंतजामिया को अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी है। मगर हमेशा ही की तरह शोबे बागात के जिम्मेदारान की लापरवाहियों के सबब ये बाग फिर से उजड़ने लगा है। यहाँ लगाए गए खिलौने टूट फूट गए हैं। यहाँ बिजली सप्लाई के लिए लगाई गई डीपी के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के सबब ये खुली डीपी यहाँ तफरीह के लिए आने वाले बच्चों के लिए वबाले जान बनने लगी है। यहाँ सफाई के इंतजामात भी दुरुस्त नहीं हैं, और तो और पीने का पानी जिन बर्तनों में रखा जाता है उसमें डेंगू और मलेरिया जैसे वबाई अमराज फैलाने वाले जरासीम की भरमार होने लगी है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है और शहरियान में शोबे बागात के तई नाराजगी फैलने लगी है और वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। भारी बहुजन महासंघ की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है और मुतालबा किया गया है कि रमाई घरकुल स्कीम के लिए इससे पहले जो सर्वे किया गया था उसमें बनाई गई फहरिस्त ऑनलाइन जारी की जाए। इसी तरह इस स्कीम के लिए जो दोबारा से सर्वे किया जा रहा है उसे फौरी बंद करवाया जाए। वाज़ेह है कि रमाई घरकुल स्कीम के तहत ज़रूरतमंद और अहल अफराद को मकानात की तामीर के लिए फंड्स फराहम करवाने की गर्ज से खानगी एजेंसी की मारिफत आज से 10 माह कबल सर्वे करवाया गया था और सर्वे के बाद जो फहरिस्त तैयार की गई थी उसे ऑनलाइन करना जरूरी था, मगर ऐसा न करते हुए म्यूनसिपल इंतजामिया ने फिर से सर्वे का काम शुरू करवाया है, जो सरासर गलत है। लिहाजा शुरू किया गया सर्वे का काम फौरी बंद किया जाए और 10 माह कबल सर्वे के बाद जो फहरिस्त तैयार की गई है उसे ऑनलाइन जाहिर किया जाए। इस मुतालबे को लेकर भारी बहुजन महासंघ की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। मज़कूरा तंजीम के कायद संदीप कुंटे का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तब तक उनकी हड़ताल जारी ही रहेगी। आमची या ठिकाणी मागणी अशी आहे, रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत शहरात मनपाच्या अंतर्गत अनेक वस्त्यामध्ये घरकुलचे कामं होतात। या ठिकाणी पहिले जुनी एजन्सी घरकुल कक्षाने किंवा मनपाच्या HOD यांनी नवीन जुनी एजन्सी नेमली होती। कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्षापूर्वी समाज कल्याणने यादी मंजूर करून मनपाला पाठवली होती। त्याचे संबंधित सर्वे एक जुनी एजन्सी होती त्यांना त्या ठिकाणी देण्यात आले होते। तर 2 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी सर्वे झालेले असून 2 वर्षापासून गेल्या 8-10 महिन्यापर्यंत ते सर्वे चालू होते, म्हणजे 1 वर्ष ते सर्वे करायला लागले। तर ते सर्वे झालेले असून त्याची यादी मागच्या 1 वर्षापूर्वी 1.5 वर्षापूर्वी ज्यांचा सर्वे झालेला आहे अशांचे तुम्ही जाणून बुजून अवहेलना करू नका। ज्यांचे सर्वे झालेले आहे त्यांची यादी लवकरात लवकर प्रसारित करा, अन्यथा हा जो उपोषणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर आहे तो असाच या ठिकाणी कायम चालू राहील, याची महापालिका प्रशासनाने नोंद घ्यावी। नर्सेस के मुख्तलिफ मतालबात पर घाटी दवाखाना और सिविल अस्पताल की नर्सेस ने आज अपने अपने दवाखानों के अहाते में हड़ताल की और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए। वाज़ेह रहे कि नर्सेस के मुख्तलिफ मतालबात पर महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशन और नर्सेस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज काम बंद एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशन की सदर इंदुमती थोरात, फेडरेशन की शहर सदर शुभ मंगल भक्त की रहनुमाई में घाटी अस्पताल के अहाते में जोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मुजाहिरीन में द्रौपदी कर्डिले, महेंद्र साळवे, प्रतिभा अंधारे, कालिंदी इधाते, वंदना कोळनूरकर, प्रवीण व्यवहारे और नवाज सैयद समेत स्टाफ नर्सेस बड़ी तादाद में शामिल थी। आमच्या मागण्या मान्य करा, हम सब एक हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट
गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनचा, शासकीय परिचारिका संघटनेचा हम सब हमारी यूनियन हमारी यूनियन आमच्या मागण्या मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा. आम्ही 15 दिवसापूर्वी शासनाला नोटीस दिली होती की आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही संप करत आहोत. आम्हाला अपेक्षा होती की शासन चर्चेला बोलवून, कारण आतापर्यंत असंच असतं, संपाची नोटीस दिल्यानंतर शासन चर्चेला बोलवतं, चर्चेमधून काही प्रश्न सुटतात, जर काही नाही सुटले तर आंदोलनासारखा पवित्रा घ्यावा लागतो. 18 वर्ष जर काही प्रश्न प्रलंबित असतील तर शासन परिचारिकांच्या बाबतीत किती उदासीन आहे हे लक्षात आलं. परवा मी मुद्दामून मुंबईला गेले होते आणि त्या दिवशी पण मी सगळ्यांची भेट घेऊन मला वाटलं होतं की ते आम्हाला काहीतरी पत्र वगैरे देतील की तुम्हाला आम्ही या दिवशी चर्चेला बोलवतो. आम्ही संप स्थगित केला असता. चर्चेमधून प्रश्न सुटतात हा माझा 40 वर्षांचा अनुभव आहे. परंतु आमचं निवेदन घेतलं आणि त्याच्यावरती खूप निष्काळजीपणा त्या ठिकाणी प्रशासनाकडनं दिसून आला आणि कुणीही इतके उदासीन होते की मग आंदोलनाशिवाय काही पर्याय नव्हता. ट्युटरची पदं 18 वर्ष झाले भरलेले नाही. मेट्रनची पदं अनेक रिक्त पदं आहेत आणि प्रमोशननी पदं द्यायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे DHSला सरळ सेवा भरतीने अधिपरिचारिका सेवेत रुजू झालेल्या आहेत, त्यांची पुन्हा परीक्षा घेणार आणि DMR मध्ये सरळ सेवेने रुजू झालेल्या अधिपरिचारिकांची परीक्षा घेण्यात येणार नाही. तर DHS मध्ये जी परीक्षा घेण्यात येणार आहे आरोग्य विभागात, त्या परीक्षेला आमचा विरोध आहे. कारण कुठे पण पॉकेट नियम काढले जात आहेत आणि परिचारिकांची पिळवणूक आणि छळवणूक या प्रशासन आणि शासनाच्या कार्यकाळात सुरू आहे. त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. सर्व रिक्त पदे मेट्रन, ट्युटर, असिस्टंट मेट्रन आणि इंचार्ज सिस्टर ही पदं सगळं सिनियरिटी प्रमाणे म्हणजे सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे भरण्यात यावी. इसी तरह सिविल अस्पताल चिकलथाना में नर्सेस ने जोरदार मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की. टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज देवगिरी गवर्नमेंट ITI कॉलेज और टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए. वाज़ेह रहे कि मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ के तहत स्किल डेवलपमेंट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टर और क्षत्रिय टोयोटा वालूज के दरमियान आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए. इस ज़मन में एक प्रोग्राम आज देवगिरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर देवगिरी गवर्नमेंट ITI कॉलेज, PB दुर्गे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिटी के चेयरमैन आशीष गुरुए, देवगिरी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल दिलीप वानखेड़े, मैनेजर SPU रवि सोनटक्के, असिस्टेंट मैनेजर CF एंड TSD संदीप पवार, वाइस प्रेसिडेंट सर्विस रोम नसीर मानर, सर्विस GM सचिन महामुने और HR मैनेजर विशाल भी मौजूद थे. शहर में फिर एक बार बड़ा मालियाती धोखाधड़ी का मामला मंजरे आम पर आया है. निफ्टी गुरुजी शेयर मार्केट क्लासेस के डायरेक्टर ने मुख्तलिफ सरमायाकारों को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपयों का चूना लगाया है. इस मामले में वैदात नगर पुलिस थाना में केस दर्ज किया जा चुका है. मामले की तफसीलात यूं सामने आई हैं कि अगस्त 2022 था जून 2023 के दौरानिया में LFS ब्रेकिंग नामी कंपनी के डायरेक्टर ने सरमायाकारों को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया, जिसके सबब निफ्टी गुरुजी शेयर मार्केट क्लासेस के जरिए सैकड़ों सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर सरमाया लगाया था. लेकिन इसके बाद से अब तक इन सरमाया लगाने वालों को कोई परतावा, मुनाफा या असल रकम भी नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर सरमायाकारों को एहसास हुआ कि उनकी शायद ठगी हो चुकी है. इस एहसास के तहत एक नौजवान सुभाष भास्कर तौर ने जब पुलिस थाने का रुख किया तो पता चला कि मजीद 24 अफराद को कमोबेश 1,44,50,000 रुपए का धोखा दिया गया है. इस शिकायत की बुनियाद पर वेदांत नगर पुलिस थाना में मजकूरा LFS ब्रेकिंग कंपनी के जिम्मेदार जियाउर रहमान साकिन वेस्ट बंगाल, सोनल भक्ता साकिन गुजरात, सौमित्र सिन्हा, सौरव अधिकारी
सेजल मैग्जी देसरचंद्रा, दिलीप कुमार बैती और कंपनी के महाराष्ट्र के हेड विनोद बाला साहब माने और निफ्टी गुरुजी शेयर मार्केट क्लासेस के ब्रांच हेड विनोद त्र्यंबक साल्वे के खिलाफ मालियाती धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि इस कंपनी में कमोबेश 800 लोगों ने सरमायाकारी की है। मजीद तहकीकात मालियाती जराइम शाख के इंस्पेक्टर संभाजी पवार कर रहे हैं। निफ्टी गुरुजी शेअर मार्केट कंपनी आहे। या ठिकाणी विनोद माने यांनी त्यांना जे आहे त्या कंपनीची माहिती दिली आणि त्यावरून त्यांना ऑगस्ट 2022 ते 2023 पर्यंत तुम्हाला जे आहे त्यांनी जे पैसे गुंतवणूक केले होते त्यावर 2% व्याज त्यांना दिलेले आहे। परंतु त्यानंतरचा जो आहे जुलै नंतर त्यांनी व्याज देणं बंद केल्यानंतर या सदरच्या लोकांनी विचारणा केली असता त्यामध्ये सेबीनी जे आहे आमचं रजिस्ट्रेशन रद्द केलं असं सांगून नंतरचा परतावा त्यांनी देणं बंद केलं। आतापर्यंत सदरच्या लोकांनी माहिती घेतली असता आणि पैशाची मागणी केली असता त्या व्यक्तीने देणं बंद केल्यामुळे सदरची जे आहेत सुभाष तौर यांनी फिर्याद दिलेली आहे आणि या विनोद माने व विनोद साळवे छत्रपती संभाजीनगरला राहणारे यांनी त्यांना 2% परतावा रक्कम मिळणार असे आमिष दाखवून आणि सेबीची रजिस्ट्रेशन कंपनी आहे आणि तुम्हाला चांगला फायदा होईल अशी त्यांना आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करून 1,44,50,000 रुपये जे आहे त्यांच्याकडून फसवणूक करून घेतलेली आहे आणि आता त्यांची ते रक्कम ते रिफंड करत नाही। त्यावरून वेदानगर पोलीस स्टेशन येथे 420, 406, 468, 471 आणि 120 ब आणि MPID ॲक्ट नुसार सदरचा गुन्हा दाखल करून सदरची रक्कम मोठी असल्यामुळे माननीय CP सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली व त्यांच्या ह्याच्यानुसार EOW म्हणजे इकॉनॉमिक विंग येथे संभाजी पवार सर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे सदरचा तपास देण्यात आलेला आहे। ST बस से सफ़र कर रही बैरूनी रियासत की ख़वातीन पर चोरी का शुबा होने पर मज़कूरा बस सीधे पुलिस स्टेशन ले जाई गई। ये वाक़या नागपुर औरंगाबाद बस में पेश आया। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर औरंगाबाद बस में सवार एक खातून को दीगर 5 ta 7 बैरून रियासत की खवातीन पर उनकी नकलो हरकत के सबब चोर होने का शुबा हुआ और जब उसने शिकायत की तो कंडक्टर ड्राइवर ने बस का रुख सीधे जालना तालुका पुलिस थाना की तरफ कर दिया और बस पुलिस थाना ले आए। यहाँ पहुँचने के बाद खवातीन पुलिस एहलकारों के ज़रिए इन 5-7 खवातीन की तलाशी ली गई, ताहम उनके पास कुछ भी काबिल एतराज़ न पाया गया तो उन्हें पाबंद करके छोड़ दिया गया। इस तरह की मालूमात तालुका पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुरेश सोनोने ने दी है। सदरची ST नागपूर ते संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर जाणारी आहे। त्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या एका महिलेला तिच्या बाजूला 5-6 दुसऱ्या राज्यातील महिला आल्याने तिला संशय आला की ह्या चोरी करायच्या उद्देशाने तिच्याजवळ आलेल्या आहेत। त्यामुळे सदरची घटना हे देऊळगाव राजाच्या हद्दीतील होती, पण पोलिसांना आपलं तालुका जालना हे जवळ पडत असल्याकारणाने त्यांनी तालुका जालना इथं आलेल्या आहेत। त्या महिलांना महिला कर्मचारी वळगे मॅडम यांच्या मदतीने झडती घेतलेली आहे। त्यांच्याकडे काही मिळून आलेलं नाही आहे। प्रवासी महिलेचे काही चोरीला गेलेलं नाही आहे, त्यांनी काही कोणती तक्रार दिलेली नाही आहे। तरी सदरच्या महिला चोरी करण्याच्या असू शकतात, यावरून त्याच्यावर योग्य ती प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली। शिव जयंती के मौके पर ड्राई डे होने के बावजूद शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ जालना सदर बाज़ार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर शराब का ज़ख़ीरा ज़ब्त किया है। यार है कि आजहानी अजीम रहनुमाओं के यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत ने नशाबंदी कानून नाफिज कर रखा है। ताहम इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जालना में शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर शराब की खरीदो फरोख्त की इत्तला पुलिस को मिली तो सदर बाजार पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की और कमोबेश 19,960 रुपये कीमत की देसी व अंग्रेजी शराब की 171 बोतलें पंचों की मौजूदगी में जब्त कर ली और शराब की चोरी छुपे खरीदो फरोख्त करने वाले मुलजिमीन पर मामले दर्ज किए गए। ये कार्रवाई आला पुलिस अफसरान की रहनुमाई में इंस्पेक्टर संदीप भारती की क़ियादत में पुलिस के DB स्क्वाड ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। इलाक़ा मराठवाड़ा में कायम होगा इंडस्ट्रियल हब, बहुत जल्द हमारा मुल्क बन जाएगा दुनिया की तीसरी मुआशी ताकत, कहा मरकज़ी वज़ीर सनअत पीयूष गोयल ने।
नेहरू भवन में तामीर किए जा रहे मॉडर्न मार्केट की दुकानें हासिल करने में शहरियान को नहीं दिलचस्पी, अपना मकसद पाने BOT पर प्रोजेक्ट चलाने की तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर। लाखों रुपये खर्च करके बोटैनिकल गार्डन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था डेवलप, मगर शोबे बागात की लापरवाहियों के सबब गार्डन फिर से होने लगा है खंडर में तब्दील। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और मुख्तलिफ मतालिबात पर नर्सेस फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र और फेडरेशन ऑफ इंडिया की पुकार पर घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल की नर्सेस ने की हड़ताल, हुकूमत के खिलाफ जमकर लगाए नारे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।